Assalamu alaikum students. My today's topic is language work of the second short story Moti Gaj Mutiner. I have already informed you in my previous video that I am going to teach you conjugation of verbs and degrees of adjectives in next video. So let's start from conjugation of verbs. Dear students, you all know that we use a verb into its four forms. For example, let's take the verb see. It has its four forms: see, saw, seen, seeing. These four forms of verb are called present form, past form, past participle, and present participle. Present form is called first form, past form is called second form, past participle is called third form, and present participle is called fourth form of verb. This present participle is sometimes called ing form of verb. एक और वर्ब हम यहाँ पे लेते हैं teach. Its past form is taught, past participle is taught, and its present participle is teaching. इसी तरह से एक और वर्ब है go. Its go is present form or first form. Its second form or past form is went. Its third form or past participle is gone, and its fourth form or present participle is going. Dear students, when we write or when we use a verb into its different forms, we see that some verbs change when we convert a verb into second form. For example, अगर हम लिखते हैं teach, तो past form इसकी जो है वो है taught. इसी तरह से rise की second form है rose. एक और verb हम यहाँ पे लेते हैं go, इसकी past form है went. seek, its past form is sought. तो हम देखते हैं कि एक वर्ब जो होती है, जब हम इसको पास्ट फॉर्म में प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेंट्रल वॉवल होता है वो चेंज होता है. मिसाल के तौर पर अगर हम गो की बात करेंगे तो यहाँ पे ओ सेंट्रल वॉवल है. तो जब हम वेंट देखते हैं तो इसमें जो सेंट्रल वॉवल है वो ई है. इसी तरह से टीच में सेंट्रल वॉवल ई है, और अगर हम इसका पास्ट फॉर्म देखेंगे वो है टॉट, तो सेंट्रल वॉवल ए ई है. These verbs are called strong verbs. Strong verbs वो verbs होते हैं जिनको हम प्रेजेंट से पास्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इनका सेंट्रल वॉवल जो होता है दैट चेंज, वो चेंज होता है. यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वॉक, इट्स पास्ट फॉर्म इज वॉकड. इस तरह से एक और वर्ब है कुक, इट्स पास्ट फॉर्म इज कुकड. या लुक, इट्स पास्ट फॉर्म इज लुकड. तो अगर आप देखोगे कुक में जो सेंट्रल वॉवल है वो है ओ, डबल ओ. तो कुकड़ में भी सेंट्रल वॉवल है सी ओ ओ के ई डी. तो इसमें भी सेंट्रल वॉवल सेम रहा. अगर हम टॉक की बात करेंगे, टी एल के टॉक, तो यहाँ सेंट्रल वॉवल ए है, और टॉकड टी एल के ई डी टॉकड, तो इसमें भी सेंट्रल वॉवल ए है. तो सेंट्रल वॉवल सेम रहता है. व्हेन वी चेंज अ वर्ब फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म टू सेकंड फॉर्म और फ्रॉम प्रेजेंट फॉर्म टू पास्ट फॉर्म, देयर आर सो मेनी वर्ब्स in which the central vowel remains unchanged. These verbs are called weak verbs. इसके अलावा भी बहुत और सारी और verbs हैं. When we conjugate them, their central vowel remains unchanged, and these verbs are called weak verbs. हमारे यहाँ जो verbs दी हुई हैं, the following verbs remain unchanged in the conjugation. बहुत सारी ऐसी verbs हैं
जो बिल्कुल तब्दील नहीं होती, यानी कि कोई भी वर्ड उनका चेंज नहीं होता है. These verbs fall into the group of weak verbs. For example, beat, beat and beat. प्रेजेंट फॉर्म भी, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इनमें. अगर हम एक और वर्ब लेते हैं, ब्रॉडकास्ट, 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 यहाँ पे टेलीकास्ट, 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 पुट, पुट, पुट. Identify 5 or more verbs which remain unchanged in the conjugation. जो हमारे लिए क्वेश्चन है आज का वो यही है कि हमें और 5 verbs को लिखना है जो कंजुगेशन में चेंज नहीं होती. बहुत सारी और वर्ब्स थी, फॉर एग्जाम्पल शट, 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 या कट, 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 पुट, पुट, पुट. ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं जो चेंज नहीं होती हैं व्हेन वी चेंज अ वर्ब फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. एक और बात यहाँ पे है जो हमें अब डिस्कस करनी है, वो है आइडेंटिफाई 5 मोर वर्ब्स, नोट द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स talk about adjectives. We all know that there are 8 parts of speech, and one of the important constituent that's adjective. Adjectives show quality of a noun, or we can say that adjectives qualify a noun. They add meaning to the noun. उर्दू में हम इसको सिफत कहते हैं. तो सिफत जो होती है, वेदर इट इज़ बैड और गुड, ये एक नाउन की ही होती है. तो एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी डिग्री होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहेंगे कि कोई शख्स अच्छा है, लेकिन अच्छा कहने से ये बात साबित नहीं होती है, ये बात क्लियर नहीं होती है कि वो कितना अच्छा है. या अगर हम कहेंगे ही इज टॉल, तो टॉल से ये साबित नहीं होता है कि हाउ मच टॉल ही इज, वो कितना टॉल है. सो देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. पहली वाली जो बात है, पहली वाली जो डिग्री है, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. डियर स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव डिग्री है, इसमें हम इस नाउन को किसी भी और नाउन के साथ कंपेयर नहीं करते हैं. मिसाल के तौर पर, अगर कोई लड़का अच्छा है तो हम कहेंगे अहमद इज अ गुड बॉय. तो हमने अहमद को किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं किया. लेकिन अगर हम इसी अहमद को असलम के साथ कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा है. तो हम कहेंगे अहमद इज बेटर देन असलम. अहमद इज बेटर देन असलम. So it's called comparative degree because in this we compare 2 things or 2 nouns. But when we talk about the superlative degree में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में हम इस नाउन को और सारी उस जैसे जो भी होते हैं नाउन्स, उनके साथ कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में बहुत सारे लड़के हैं तो हम कहेंगे अहमद इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, और वी कैन से दैट अहमद इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. रिमेंबर here one important thing, that if you use superlative degree in writing or in speaking, always use definite article there before it. तो हमने यहाँ पे बात की कि पॉजिटिव डिग्री होती है, हम किसी चीज़, किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में हम उसी नाउन को किसी दूसरे उसी जैसे के साथ कंपेयर करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में हम उस नाउन को बाकी सारे जो उस जैसे हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं. इस तरह से बैड, वर्स, वर्स्ट. तो यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन है, फॉर्म
डिग्रीज फॉर्म डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है तो हम कंपैरेटिव डिग्री भी और सुपरलेटिव डिग्री भी यूज करेंगे इनकी। यहां पे है लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इसी तरह से बिग, इट्स कंपैरेटिव डिग्री इज बिगर एंड इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज बिगेस्ट। बिग का मतलब होता है बड़ा। हम कहेंगे कि कोई नाउन बड़ा है, तो जब इस नाउन को हम किसी चीज के साथ कंपेयर करेंगे, किसी उसी जैसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम कहेंगे दिस थिंग इज बिगर देन दिस थिंग। अगर हम इस चीज को सारी उस जैसी चीजों के साथ कंपेयर करना हो तो हम कहेंगे दिस थिंग इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ी। थिन, थिनर, थिनेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स दूंगा। यहां पे कोल्ड के बारे में हम बात करेंगे। हम कहेंगे द्रॉस इज अ कोल्ड प्लेस, द्रॉस इज अ कोल्ड प्लेस। उसके बाद हम बात करेंगे, हम कहेंगे ग्रीनलैंड इज कोल्डर देन द्रॉस। उसके बाद हम कहेंगे द प्लेसेस नियर द पोल्स आर द कोल्डेस्ट। ठीक है ना। तो कोल्डेस्ट यानी कि कोल हमने कहा कोल्ड, हमने एक जगह की बात की, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। कोल्डर में हम उसको कंपेयर करते हैं और दो चीज़ों में, और कोल्डेस्ट में सारी चीज़ों के साथ। इसके बाद है ग्रेट, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ ग्रेट। तो कहेंगे हम ही इज़ ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स किसी दूसरे से बड़ा, अजीम। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। हम कहेंगे मिसाल के तौर पर हम कहेंगे दिस स्टार इज ब्राइट, और उसके बाद कहेंगे दिस स्टार इज ब्राइटर देन दैट स्टार। उसके बाद कहेंगे सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। लाइट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ये लाइट नाउन भी है। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं रोशनी, तो यहां लाइट का मतलब है हल्का। लाइट बॉक्स, लाइट मीन्स हल्का बॉक्स। बॉक्स तो नाउन है और लाइट जो है इट्स क्वालिटी। तो यहां हल्का, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लवली, लवलियर, लवलेस्ट। Sorry, lovely, lovelier, loveliest. So I think this is enough for today. नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे दैट्स लून प्ले इन योर टेक्स्ट बुक। वहाँ पे दो जो प्लेज हैं, एक है इफ़ आई वेर यू और दूसरा है ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट आपके T1 सिलेबस में है, और जो इफ़ आई वेर यू वो T2 सिलेबस में है। तो ये हमारा लास्ट वो प्ले हमारा लास्ट लेसन होगा T1 के लिए। तो उसको भी हम 2-3 वीडियो उसमें कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपका जो T1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो बी एट होम, stay home and stay safe. Khuda Hafiz.